صبح کے 7 بج رہے تھے اور آسمان پر سورج کی روشنی چھانے لگی تھی۔ نومبر کے دنوں میں پشاور میں ویسے ہی سورج دیر سے اپنی شکل دکھلاتا تھا۔ ہوا میں خنکی موجود تھی۔ ایسے میں خٹک ہاؤس میں سب ڈائننگ ٹیبل پر اپنی اپنی جگہ براجمان تھے۔ سردار اعلیٰ کی سیٹ پر اس گھر کے سربراہ ولید خٹک بیٹھے تھے۔ باقی سیٹوں پر ان کے بیٹے بیٹیاں بہویں بیٹھی ناشتے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایسے میں کلثوم بیگم، ولید خٹک کی بیوی، ایک ملازمہ کے ساتھ کچن سے نمودار ہوئی اور ناشتہ لگوانے لگیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال کیا کریں، کتنی مرتبہ سمجھانا پڑے گا اور آپ کو، آئندہ میں تاخیر نہ دیکھوں کہیں۔ ولید صاحب کی روب دار آواز سے ماحول میں خاموشی چھا گئی اور کلثوم بیگم روز کی طرح آج بھی سب کے سامنے اپنی بے عزتی پر آنسو پیتی رہ گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا یہاں۔ ایک منٹ بھی کسی چیز میں اوپر نیچے ہو جاتا تو سب کے سامنے ہی سامنے والے کی بے عزتی کر دی جاتی۔ اپنے اصولوں اور زبان کے پکے خٹک فیملی میں سب سے بڑے، ہر کوئی ان کی بات پر سر خم کر دیتا۔ آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کی کسی بات پر نہ کہتا۔ ولید خٹک، ان کی بیوی کلثوم بیگم اور ان کے 6 بیٹیاں اور 4 بیٹے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ اب ان کی 2 بیٹیاں فضا اور دیا اور ایک بیٹا زرغام ہی کنوارے تھے۔ رمیز خٹک جو کہ ولید خٹک کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیگم ہنا اور ایک بیٹا امان اور ایک بیٹی زرینہ۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں مل سکتی میں تم سے ابھی؟ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے گھر کا ماحول۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ مطلب اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہوا تمہیں؟ نہیں کرتی نا تم مجھ سے محبت؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مانی؟ میں صرف تمہیں سے محبت کرتی ہوں۔ اچھا آج نہیں، کل پکا کالج سے پک کر لینا، اوکے؟ اچھا لیکن سارا ٹائم تم میرے ساتھ گزارو گی؟ ہاں بابا، لیکن کالج کی چھٹی سے پہلے مجھے چھوڑ دینا۔ اوکے بائے۔ دیا آ جاؤ، کالج کے لیے بس آ گئی ہے۔ چلو آج ٹیسٹ ہے نا، کبھی تو جلدی تیار ہو جایا کرو۔ امی میں نے کون سا تیار ہونا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کرنے دیتی ہمیں، نہ میک اپ، نہ فیشن کے کپڑے، نقاب میں تو ویسے بھی کون دیکھے گا، لیکن پھر بھی نہیں کرنے دیتی کچھ۔ پتہ تو ہے نا اپنے ابا کا، کتنی مشکل سے پڑھائی کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی کالج میں۔ اب یہ فرمائشیں جو ہے نا وہ بھی بند کروا لو، یہ فیشن کر کر کے۔ اب یہ سنگھار کرے گی تو نظر نہیں آئے گا کیا کسی کو؟ چلو چہرے پر نہیں لگاؤ گی لیکن آنکھوں پر تو لگاؤ گی نا، تیری آنکھیں تو ہیں بھی اتنی خوبصورت، اور سنگھار کرے گی تو نظر لگ جائے گی۔ تو چاہتی ہے کہ تجھے سب نامحرم دیکھیں؟ نہیں نا، تو پھر چھوڑو، ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہے تمہیں۔ جی امی بس یہ نقاب کر لوں۔ بابا جی کیا ہوا؟ کیا بنا میرے کام کا؟ میرا کام ہو تو جائے گا نا، قسم سے بابا جی۔ اس کی بہنیں بڑی تیز ہیں، مجال ہے جو آس پاس بھی پھٹک جائے میرے وہ۔ بس کوئی تعویذ دے دیں بابا جی تاکہ وہ جلد از جلد میرا ہو جائے اور اس کی بہنوں سے بھی جان چھوٹے۔ یہ تعویذ آدھی رات میں جلا دینا روز، دیکھو کیسے تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جی شکریہ بابا جی، چلتی ہوں اب میں۔ سن لڑکی، جی بابا جی۔ ایسے ہی چلی جائے گی تو میرے یہ جو چیلے کام کرتے ہیں نا ناراض ہو جائیں گے۔ جی جی یہ لے 1000 ہی لائی تھی میں، ابھی بس کام ہو جانا چاہیے۔ صبر رکھ، ایسے کاموں میں دیر سویر تو ہوتی ہی ہے۔ یہ سن کر وہ ایک نظر آستانے پر ڈال کر چلی گئی جہاں ہر طرف اندھیرا، خون اور کھوپڑیاں دکھ رہی تھیں۔ عجیب ہی وحشت زدہ سا ماحول تھا، اور اس پر عورتوں کا رش اور ان کے بین۔ بابا جی کی آنکھوں میں ہوس کے جگنو جگمگا رہے تھے، اور یہ ہوس جسم اور پیسہ دونوں کی تھی۔ دونوں بیٹیاں الگ الگ کالجز میں پڑھتی تھیں۔ فضا BA تو دیا 2nd ایئر میں تھی۔ یار آج تو بڑا بور لیکچر تھا، قسم سے یار۔ سر ارشد کی کلاس تو انتہائی بورنگ ہے، اور ان کی کلاس میں تو سردی میں بھی پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ خاموشی اور سناٹے سے عجیب سیریس سا ماحول ہو جاتا ہے۔ کلاس میں جمائیاں لیتے رہو بس، کلاس میں نیند آ جاتی ہے اچھے بھلے بندے کو۔ ندا دھپ سے دیا کے برابر بیٹھ گئی جو کالج گراؤنڈ میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، اور آتے ہی اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر دیا پر گئی تو الگ طرح سے غصہ امڑ آیا۔ بس کر دو دیا، حد ہے، کتابی کیڑا نہ ہو تو میں اتنی دیر سے بولے جا رہی ہوں اور تم ہو کے سن ہی نہیں رہی۔ مجھے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ ہاں تو کیا کروں میں ندا، روز روز کی تمہاری ایک ہی بات۔ سر کا پیریڈ بور ہوتا ہے، سر کی کلاس سیریس ہوتی ہے، تمہیں نیند آتی ہے بلا بلا۔ ہاں نہیں تو اب میں کچھ بولوں بھی نا، کسی قید سے کم نہیں ان کی کلاس۔ اچھا چلو آؤ کینٹین سے رول کھائیں۔
चलो ठीक है, तुम्हें पता है मैं कराची गई थी। हाय इतनी मिर्चें खाते हैं, मुझसे तो खाना ही नहीं खाया गया। यहाँ के तो खाने कम मसालों के होते हैं ना। वहाँ चटपटी थी मिर्चों वाली, लेकिन यार मज़ा आ गया खा के। बिल्ली के ख्वाब छीछड़े। मैडम ख्यालों से बाहर आओ और अभी ये रोल खाओ। हाँ हाँ ले रही हूँ मैं भी। फिजा कॉलेज बस से उतरी और बस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही बस गायब हुई, वो इधर उधर नज़रें दौड़ाना शुरू हो गई और वो उसे खड़ा नज़र आ गया वहीं। और हमेशा की तरह वो उसे देखती ही रही। हालांकि मानी मामूली शक्ल सूरत का ही था, लेकिन महबूब तो महबूब होता है ना। तो हर बार की तरह नज़रें ठहर सी गईं उस पर। होश तो तब आया जब इर्द गिर्द से हॉर्न की आवाज़ें सुनाई दी। फिर वो चलती हुई चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। क्या करती हो यार, तुम भी क्या देखती हो? अजीब झुंझुलाहट होती है मुझे तो। सबके सामने ऐसे देखने लग जाती हो। कुछ नहीं मानी, जब जब तुम्हें देखती हूँ तो हर दफ़ा नए सिरे से प्यार आने लगता है मुझे तुम पर। कल जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या हुई। कैसे बताऊं कि कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा चलो अब बातें ही करती रहोगी क्या? तुम चलो पहले कहीं चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। हाँ ठीक है। और फिर पार्क में सड़कों पर वक्त गुजारते गुजारते कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो गया और मानी वहीं कॉलेज के सामने उसे छोड़ गया। बस आ गई तो वो घर चली गई। जैसे ही दिया घर आई तो देखा कि घर में हलचल और तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां देखते ही उसने माँ से पूछा कि ये किसके लिए तैयारी हो रही है। बेटा तुम्हारी बहन को कुछ लोग देखने आ रहे हैं आज, इसलिए सब तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा अम्मी, फिजा आपी से मिल के आई, मैं देखूं तो तैयार कैसे हो रही है। अरे वाह आपी, क्या बात है भाई, सुना है रिश्ता विश्ता आ रहा है। हैं, शर्मा लो थोड़ा सा, मुंह क्यों बना है तुम्हारा? भाई यार दिया, अभी नहीं करनी मुझे शादी। तो फिर कब करोगी? अरे अभी बीए तो कंप्लीट होने दो, तकरीबन 2 साल तो लाजमी ही चाहिए मुझे, फिर सोचूंगी। लेकिन आप भी अब्बा का तो पता है ना, पहले तो तुमसे पूछेंगे नहीं। चलो बिलफर्ज पूछ भी लिया तो जैसे ही वो तुम्हारा बर्दाश्त तो करेंगे नहीं इनकार। फिजा का चेहरा उदास होते देख उसने बात को खत्म करना चाहा। अच्छा छोड़ो आपी, अल्लाह बेहतर करेगा। हम कोशिश करेंगे कि अभी शादी ना हो तुम्हारी, ठीक है? अब मूड ठीक कर लो अपना, मैं चेंज करके आती हूँ। आधी रात का वक्त, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, घटते हुए चांद के दिन। ऐसे में घर के पिछले हिस्से में खुले आसमान के नीचे वो तावीज़ जलाने में मगन थी। दुनिया जहान की परवाह किए बगैर साथ ही मुंह में बुड़बुड़ाती रही, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी। और देखना, तुम्हें ऐसे काबू में करूंगी कि तुम्हारी बहनें भी परेशान होंगी। मुंह नहीं लगाओगे तुम उन्हें, बड़े तो वैसे ही नहीं लगाते उन्हें मुंह। अब्बा के आगे कुछ बोल नहीं सकते, मेरे ही कब्जे में होगा सब कुछ। और उसके बाद कह कहा। अम्मी जो कि पानी पीने आई थी, सरसराहट और बुड़बुड़ाने की आवाज़ पर पिछले हिस्से में आई तो देखा जरीना खड़ी है। और उसे ऐसे रात के इस पहर खड़े देखकर उन्होंने अचंभे से इर्द गिर्द देखा और पूछने लगी, इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? वो अम्मी कुछ नहीं, घबराहट हो रही थी तो खड़ी हो गई। अब तो ठीक है सब, चलो फिर आ जाओ अंदर चलो। खानदान के ही दूर दराज के रिश्तेदार आए थे फिजा के लिए। जी भाई साहब, वैसे तो सब ठीक है, फिजा भी बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन भाई साहब मैं अभी बता दूं कि हमारे घर कोई मुलाजमा वुलाजमा नहीं है, तो घर के सब काम खुद ही करना पड़ेंगे। और भाई सब हमारी मर्जी से होता है, हमारे घर में ये नहीं कि ये महारानियों की तरह हुक्म चलाएं जैसे यहाँ चलाती हैं। मेकअप से लिथड़े चेहरे पर गरूर और अना की फिटकार बरस रही थी। कीमती मलबूसात पहने हुए अच्छे खाते पीते घराने में भी उन्हें अपने बेटे के लिए नौकरानी चाहिए थी जो कठपुतली की तरह उनके इशारे पर नाचे। ये सब समझ आते ही वलीद साहब को एक सेकंड ना लगा इनकार करने में। बेटियों से मोहब्बत ना सही, लेकिन फिर भी बेटी तो बेटी होती है ना, यही सोचकर उन्होंने बिना देर किए इनकार कर दिया। बीबी आप अपने बेटे के लिए किसी और घर से नौकरानी का बंदोबस्त कर लें, हमारी तरफ से इनकार है इस रिश्ते से। और वो मुंह बनाकर चली गई। और फिजा की आंखें बाप की अपने लिए मोहब्बत देखकर नम हुई थी, वरना उनके घरों में कहाँ बेटियों को इज्जत और मोहब्बत दी जाती थी। वो समझते थे कि खाने के लिए खाना, तन ढांपने के लिए चादर, कपड़ा और रहने को मकान मिल तो रहा है, बहुत है ये सब उनके लिए। इससे आगे ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं दी जाती थी। फिजा खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी कि आखिर आज बाबा को हुआ क्या है, लेकिन हैरानी पर खुशी गालिब आ गई। रात में दिया और फिजा लेटी आज के दिन के बारे में सोच रही थी। अपी वैसे आज बाबा को क्या हो गया था?
कुछ नहीं हुआ दिया, हैरान तो मैं भी थी, लेकिन छोड़ो, बाप हैं वो हमारे, कहीं ना कहीं मोहब्बत तो करते ही होंगे ना हमसे, बस उन पर ये रस्मो रिवाज, उसूल और अना हावी हो गई है। खैर छोड़ो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। आज वलीद साहब के छोटे भाई रमीज़ खटक अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। उनकी फैमिली थी तो छोटी सी, एक बेटी जरीना और एक बेटा आमान और उनकी बेगम हिना। जरीना ने ताया अब्बू को देखते ही थोड़ी झिझक के साथ सलाम किया। उनके गुस्से से हर कोई खाइफ रहता था। वो भी सलाम का जवाब देकर अपने भाई और भतीजे से मिलने लगे और बातें करने लगे। खवातीन अपनी बातों में मगन हो गई। फिजा और दिया भी कॉलेज गई हुई थी। ऐसे में जरीना मौका देखकर फरार होने लगी। वो ताई अम्मी, मैं आती हूँ फिजा और दिया के रूम से, और ये जा वो जा। जरीना ने सीढ़ियों से नीचे देखा तो सब अपने आप में मगन थे। वो ये देखकर जरगाम के रूम में आ गई। सामने ही जरगाम बैठा कुछ लिखने में मगन था। जरीना ने जाते ही वो पर्चा खींचा तो शायरी लिखी देखकर पढ़ने लगी। वाह भाई वाह हीरो, तुम तो शायर भी निकले, लेकिन लिखी किसके लिए है? जरीना, शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है आप में, और ऐसे किसी भी लड़के के कमरे में मुंह उठाकर क्यों आ गई तुम? हाँ तो कज़न का कमरा है मेरे, मैं तो आऊँगी। उफ जरीना, कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें? देखो जरगाम, एक बात तो तय है कि मेरी शादी तुमसे ही होनी है। ताया अबू बाहर कहीं तुम्हारी शादी करेंगे नहीं, तो पहला और आखिरी ऑप्शन मैं ही हूँ तुम्हारे पास, तो किसी यारी गैरी को सोचना भी मत। जिसके लिए भी शायरी लिखी जा रही है ना, अगर कोई और है तो उसे भूल जाओ, समझे? मैं अपनी मोहब्बत में किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर दिया। वो बोलती ही चली गई। पीछे जरगाम सर पकड़कर तासुफ से उसे जाता देखेगा। नीचे गई तो दिया और फिजा आ चुकी थी। उनको देखकर ही उसके मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। वह मुश्किल अपने मुंह के जाविये पर काबू करते मसनूई मुस्कुराहट के साथ दोनों से सलाम दुआ की, लेकिन वो दोनों तो उसी के साथ बैठकर बातें बनाने लगी। जान तो तब छूटी जब कलसूम बेगम ने खाने के लिए सबको बुलाया। रमीज साहब की फैमिली के जाने के बाद जरगाम जरीना के बारे में सोचने लगा। कह तो ठीक रही थी, बाबा ने कौन सा बाहर करनी है मेरी शादी जो किसी और का सोचूं। है भी अच्छी, कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, बस अपनी मोहब्बत का इजहार खुलेआम करती फिरती है। चलो जरगाम मियाँ, अब जरीना को अपना बनाने की तैयारी पकड़ो। बाबा कभी भी ये बात कर सकते हैं। जरीना दोस्त के बहाने से आज भी बाबा के आस्थाने आई हुई थी। बाबा जी, तावीज़ तो काम ही नहीं कर रहा। मैंने सारे तावीज़ जलाए हैं, रोज़ आधी आधी रात में। मजाल है जो उनमें से अब तक किसी एक ने भी अपना असर दिखाया हो। अच्छा, इस बार दूसरा अमल है, सबकी नज़रों से बचकर करना। एक थाल में बजरी लेकर धूप में बैठकर रोज़ ये पड़े हुए अंडे उसमें दफन करने हैं। अगर अंडा टूट गया तो समझो तुम्हारा काम होना शुरू हो गया। और एक और बात, मेरे चेलों को सही से खुश किया करो, वरना ये काम ठीक से नहीं करते। बाबा जी, मैं ये अंगूठी लाई हूँ अम्मा की, सोने की है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका, इसी से काम चला लें। हाँ, असली है। चल ठीक है, मेरे वजीफे का वक्त हो गया है, अब जा। जी बाबा जी। दिया ने मास्टर्स में एडमिशन लिया था और फिज़ा ने बीए के बाद मास्टर्स भी मुकम्मल कर लिया था। चूँकि अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था तो इसलिए जब पढ़ने की इजाज़त मांगी तो थोड़े हंगामे के बाद मिल ही गई, लेकिन प्राइवेट पढ़ने की। इस दौरान जरीना के अमल और जादू ने भी असर दिखाया था, जिसकी वजह से उसका रिश्ता जरगाम से हो गया था, या फिर कुदरत को यही मंजूर था। अब इस दौरान उनकी शादी थी और कुछ उसकी बातों का असर था, जिसकी वजह से इस अरसे में जरगाम अपनी बहनों से बदजन हो चुका था। तुम्हारी वजह से मैंने इतना अरसा इंतज़ार किया मानी, आखिर कब तक इंतज़ार करूं मैं? कब तक यूं बहाने बनाते रहोगे तुम? अब तो ना मिलते हो और ना ही बात करते हो, और बात भी महीनों बाद करते हो, और वो भी इतनी बेजारी से। देखो फिज़ा, तुम्हें पता है ना कि मैं अब्रॉड आ गया हूँ पढ़ने के लिए। अब बस तुम 1-2 साल और सब्र कर लो, मैं पहुँच जाऊँगा, फिर घर वालों से बात करूँगा। तुम जानते हो ना, पहले भी मेरा रिश्ता आ चुका है, और इस अरसे में मेरा रिश्ता ना आने की वजह से ही मेरी शादी रुकी हुई है। कब तक बहाने करूँगी मैं अपने घर वालों को, कभी पढ़ाई के और कभी भाई की शादी के। अब तो भाई की शादी भी हो रही है। देखो, जो भी करना है जल्दी करो, वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। अच्छा बाबा, बस 2 साल और सब्र कर लो, फिर कुछ करेंगे। अभी भी कुछ? बस 2 साल मेरी जान, मजबूरी है ना मेरी। अल्लाह हाफिज। अब ओए, किसकी कॉल थी मानी? अबे यार कुछ नहीं, वही कॉलेज वाली। कसम से इतने सालों से बेवकूफ़ मेरे आसरे पर बैठी है, रिश्ता भेजो रिश्ता भेजो, बेकार है, फीकी कहीं की।
تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اتنی بری ہے تو؟ ابے نہیں، پارٹ ٹائم میں اس سے باتیں کرنے کا اپنا ہی سرور ہے۔ ہائے بس یوں سمجھ لو، جب کوئی نہیں تو یہ، اور اس کی باتوں پر سب کے فلک شگاف کہے گونجے کمرے میں۔